The institution can give you certain skills, but it cannot teach you to think. Assalamu alaikum to everyone. I don't know how many of you have actually followed the Pakistani history of fashion. I have no idea how many of you are actually conversant with the icons of Pakistani fashion. But I think this is something that we've talked about on numerous occasions in numerous different educational institutions about how fashion has always been geared looking towards the West. We always look towards the West, and this is something we've raised at the Indus. We've talked at a lot of other places about this as well, fashion school in Lahore, as well as the आपका जो है इकरा AIFD. तो मसला ये है कि हम लोग जब बात करते हैं फैशन के बारे में, फैशन की एक आइडेंटिटी होती है. Now the first thing when you have to talk about fashion, you have to find a definition for fashion. What is fashion really? How would you define fashion? And after looking through a lot of different definitions of fashion, the most primary thing that struck a chord with me was fashion is a reflection of the times that you live in, and it's based by the culture you inhabit, it's based by the economic structure, it's based by the geography. So the fashion in Africa will be very different from the fashion in Sweden, because it's a different economic structure, it's a different mindset, it's a different culture. So when you talk about fashion, you have to understand the most important thing that came out of this definition, for me personally, on my own journey, was identity. What is your identity? जब आप अपने आप को जानते हो तो फिर आपको समझ आती है कि आप कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बना रहे हैं. और अगर आप history of different brands पढ़ते हो या if you look at what's happened, the fashion revolution, what happened in France, people like Chanel who started it. If you look at people beyond that, there are people like Worth and Schiaparelli. And if you look at the history of Western fashion, you find that it was all influenced by the cultures that they inhabited on. कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है और बाहर से लोगों को आके influence नहीं किया. जब design houses शुरू हुए थे, पहले तो ये concept ही नहीं था. There was no concept of a design house. There was no concept of a designer. You had what was called seamstresses. They were very good at making and designing garments and making dresses. But the whole concept of doing that was very rooted in tradition and very stuck in conformity. कि जी एक whalebone corset है तो वो whalebone corset सब बना रहे थे. There were these dynamic people like Chanel who came in and took something as basic as a knit and started with doing loose, free-flowing clothes for women. And it was a revolution in that way. When you look at what Dior's contribution is. So Western history ने क्योंकि एक बहुत strong influence किया of documenting their passage through time. That is why the history of fashion is always is always kind of referred to through the Western tradition and always about the West. हमारे tradition में बहुत कम ये हुआ है. You don't really have a tradition कि आप उसको पढ़ा लिखा जाए. The earliest example is the Calico Museum in India. वहाँ पे उनके पास ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के ऊपर किताबें हैं, उन्होंने एक्टिवली रिसर्च किया है, उन्होंने पीसेस रखे हुए हैं वहाँ पे, एंड दे वर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल. वन ऑफ देम वाज दिस गाय कॉल्ड मुर्ताज सिंह, ऑल्सो नोन एज मापू, हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंडिया. उनको ही वाज ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल, हर चीज़ के बारे में उनको पता था, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ पास्ड अवे नाउ. लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को अपनाया. अब होता ये है कि जब भी मैं किसी फैशन इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, आई हैव ऑलवेज सीन दैट द क्यूरिकुलम इज ऑलवेज वेस्टर्न ओरिएंटेड. इट्स ऑलवेज अबाउट द गाउन, इट्स ऑलवेज अबाउट द जैकेट. एंड ये शुरू हुआ था AIFD से. AIFD के शुरू में, when AIFD was being set up, it was done with the École the fashion school in Paris. और उनके जितने भी फ्रेंच टेक्निक्स थे of couture, those were taught to the first batch of students. The same batch of students are the ones that are practicing today. उसमें शेरू भी है, उसमें नोमियन सारी भी है. None of them are doing Western clothes. They're all doing the lehenga, they're all doing the gharara, they're all doing the bridal, they're all doing the kurta, they're all doing the kameez. So वो जो आपकी एक ट्रेनिंग है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं for a job. कि जी हमने जी we are graduates of AIFD and of Indus and of this. मैं उनको कहता हूँ मुझे एक फर्शी गरारे का पैटर्न बताया.
they all look at me like this. They don't know. They don't know how to cut a pajama. वो तो बहुत आसान है. तो मैं कहता हूँ अच्छा फिर आप बना के दिखाएं. नहीं, I can make you a French jacket. I said but I don't have that clientele. मेरे पास वो लोग ही नहीं है जो तो बात वहीं आ जाती है आइडेंटिटी की. जब आप बात करते हैं आइडेंटिटी की, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप किसके लिए कपड़े बनाते हैं और आप वो कपड़े किसको बेचेंगे. अगर मुझे एक गाउन बनाना है, यू नो, फॉर वन ऑफ द स्टार्स टू वेयर ऑन द लक्स रेड कार्पेट, and because I've been trained in the French tradition, I will sell one gown. That is not the basis for a business. तो बात ये थी कि आपकी जो फैशन एक फिलॉसफी क्या है. आपके पास जितनी मर्जी स्किल्स हों, कटिंग के हो, पैटर्न मेकिंग के हो, सब कुछ, जब तक आपकी अपनी एक डिज़ाइन फिलॉसफी नहीं है, जब तक आप ये नहीं जानते आप क्या बना रहे और किसके लिए बना रहे हैं आप. और ये एक जनरल सी बात है, ये बात सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं है. आप मुझे लाहौर शहर में एक फ्रेंच फूड रेस्टोरेंट खोल के दिखा दें, कोई भी नहीं खाएगा. वहाँ पे भी फज्जे के पाए खाने लोग जाएंगे, बिकॉज उनका एक ट्रेडिशन है, उनका एक रिवाज है, उनके अपने इंडिजिनस कल्चर का वो एक हिस्सा है. तो जब आप लोग एक डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं और आप ये डिज़ाइन करते हैं, जो आपके पहले 2 साल जो होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू अ रेजिमेंट. Of the whole regimen has to be one of discovery, of experimentation. उसमें आप बुस्टियर बनाएं, आप वेस्टर्न जैकेट्स बनाएं, आप कोट्स बनाएं. उसमें होता क्या है कि आपको एक स्किल सिखाई जाती है. It hones your skill in doing things that will give you an expertise in your medium. और हमारा मीडियम क्या है? टेक्सटाइल है, सिलाई है, कटिंग है, ये हमारा मीडियम है. जब आपके हाथ में वो हुनर नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं बना सकते. It's like cooking 101. You know, it's like if you can make an incredible dal, I can understand because it's the simplest thing, but it's also the most difficult thing to get right. तो बात वहीं आ जाती है कि जब आप बात करते हैं तो एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात आप करते हैं और आप एक अपने रीतो रिवाज को देखते हैं और आप देखते हैं कि एक किस मुल्क के लिए आप कहाँ रहते हैं. एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत होता है ये, और इसके ऊपर मैं बहुत सख्त इख्तिलाफ़ात है मेरे. Everybody starts looking west. So people are looking at Dior and Chanel and Versace and Dolce and Gabbana and all of that. That's all very well. That's very, very important. It's important that you see what other cultures are doing, but nobody looks east. The only people who have done well, who are Eastern designers, are the Japanese. So people know Kenzo, people know Issey Miyake, because they went and made it big in the West. There are a lot of designers in Indonesia. Nobody will be able to name one of them. The only Chinese designer people know is Guo Pei, because she was the one who did the gown for Rihanna at the Met Ball. So as individuals, any institution, when you talk about an institution, the institution can give you certain skills, but it cannot teach you to think. Nobody can teach you to think. एक सेंस ऑफ इंक्वायरी जो होती है आपके अंदर होनी चाहिए. आप जब इंटरनेट पे बैठे हुए, ठीक है, आप यूट्यूब लगा के गाने सुन लें, बट प्लीज गो अहेड एंड ऑल्सो लुक एट व्हाट इज गोइंग टू एजुकेट यू बियॉन्ड व्हाट यू आर बीइंग टॉट. आपका जो क्यूरिकुलम है वो आपका क्यूरिकुलम है, लेकिन एक नेचुरल होती है एक टेंडेंसी कि आप पता करें. एंड जब तक इस तरह की मेरी गुफ्तगू लोगों से नहीं होती है, लोगों के अंदर भी, लोगों की सोच भी उस तरफ नहीं जाती. But because we've had these interactions with a lot of people at Indus, now as part of the curriculum, people are looking at Malaysian designers. People are looking at designers from China. People are looking at what's happening in Malaysia. People are looking at what's happening in Hong Kong. तो मकसद ये है कि एक जेनेरिक सा एक गारमेंट बन चुका है. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी हुई थी जब मैं मिडल ईस्ट गया था. I did a show in Amman, in Jordan. और शो के बाद उसमें बहुत सारा फ्यूजन था. शो के बाद हमारी एक डिनर थी जिसमें द किंग वाज देयर, हिज वाइफ, यू नो, क्वीन रानिया वाज देयर, ऑल दीज पीपल वर सिटिंग एट दिस टेबल. एंड जो किंग की जो एक फुप्पी थी, उसने कहा था कि इतनी अमेजिंग बात है कि आपने पाकिस्तानी ट्रेडिशन को लेके उसको किस तरह आपने मॉडर्नाइज किया है. तो मैंने कहा आप लोग भी कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे कल्चर में तो वो तो चलता नहीं है. तो मैंने कहा बिल्कुल आप गलत कहते हैं. मैंने कहा आप लोग जो बैठ के आप लोग ने वेस्टर्न ट्रेडिशन, एवरीबडी वाज वेयरिंग अ शनेल और यू नो वेस्टर्न आउटफिट और अ गाउन और समथिंग. तो
उनके लिए ये बहुत एक रेडिकल बात थी कि अच्छा हम भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो वेस्ट है ना, वो एक डिफंक्ट फैशन इंडस्ट्री बन चुका है। वो इसलिए डिफंक्ट हो चुका है क्योंकि वहाँ पे जो जो चीज़ें लोगों ने बनानी थी वो बना चुके हैं। They are now doing what is called, आजकल is called cultural appropriation. They are looking at Japanese designers, their collections are based on Japan, their collections are based on Africa, their collections are based on, yeah, absolutely. तो वो जो बात है, तो वो जो बात है ना कि क्योंकि आपकी अपनी एग्जॉस्ट हो चुकी कैपेबिलिटीज़, तो आप दुनिया को देख रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि जी सेंट्रल एशियन सुजानी किसी की कलेक्शन में आ गई है, तो किसी के कलेक्शन में पैलेस्टीनियन क्रॉस स्टिच आ गया है। दुनिया की ज़बान एक ही है। At the end of the day, this is a global village. You know, you are borrowing heavily from every culture. You are influenced. लेकिन ये एक subliminal influence है, आपके अंदर में होता है. लेकिन consciously, the reason I am here today is to ask all of you कि consciously आपने कभी ये सोचा कि आपने अगर कपड़े बनाने तो आपने क्या कपड़े बनाने और आपने किसके लिए बनाने, and how is it going to affect your own sense of dressing? I have very rarely gone to a fashion institute and seen a fashion designer dressed fashionably. And it's shocking. I don't understand this. So, या तो आप आ रहे हैं क्योंकि आप एक स्किल सीखना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं और आप उसको लेकर पैसे कमाना चाहते हैं. That is not an expression of yourself or of your artistry. It can be small things. लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि एक भेड़ चाल है. मेरे साथ तो बहुत होता है. People come and ask me, जी आजकल इन क्या है? I don't understand what is this whole thing about, you know, trends. Why do you have to follow trends? ये एक होता है वेस्ट में बड़ा फैशन फोरकास्ट कि लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं. तो अगर उन्होंने कह दिया द कलर फॉर नेक्स्ट ईयर इज लाइलैक, तो हर दुकान में आपको लाइलैक के शेड्स नजर आएंगे. तो कल्चरली वी आर वेरी वेरी डिफरेंट. हमने जब शुरू किया था, एंड मैं एक्चुअली आई एम अ फैशन डायनासोर, यू नो, मैं फैशन का अजदा हूँ लिटरली, बिकॉज वी सेट अप द फैशन इंडस्ट्री. हमने जब शुरू किया तो हमने बड़ा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की कि जी जैकेट भी बना लिया, तो ये भी कर लिया, तो वो भी कर लिया. अब 30 साल बाद, आई बीन इन द बिजनेस फॉर 30 years नाउ, दैट्स 3 decades. हमने देखा कि आप जब देखते हैं कि आप इसको कल्चरली रेलिवेंट किसी चीज़ को करना चाहते हैं, अब हमने जाके बहुत अरसे तक हमारा जो बेसिस था, it was all about couture based. इंडिविजुअल क्लाइंट्स आते थे, उनके साथ हम इंडिविजुअल जोड़े बनाते थे क्योंकि हमारा सेटअप बहुत छोटा था. लेकिन प्री कोविड, 2 साल कोविड से पहले हमने वेंचर किया फिर प्रेट में, फिर हमने मैस मार्केट को देखा और उसकी वजह से हमारा एक अप्रोच चेंज हो गया. तो एक जो पहले बहुत कुट्योर बेस्ड हमारा एक इंडस्ट्री था कि जी ब्राइडल बना रहे हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट्स आ रहे हैं, बहुत कम कपड़े बना रहे, बहुत महंगे बना रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज होके उसका ऑपोजिट हो गया. हमको क्या करना पड़ा? वी हैड टू लुक एट अ मैस मार्केट, हैड टू लुक एट अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट. तो हमें पहले देखना था कि ये जोड़ा बिकेगा कितने में, फिर उसके हिसाब से उसको बनाना था ताकि उसके अंदर में नफा आए. So when you do that, you start to do research and you start to find out कि what is it that is going to work in a mass market. आपके पास क्लासिक एग्जांपल्स हैं. एक तो यहीं पे है, इमेज है आप लोगों का. You know, you have shops like Khadi. You have shops like Limelight. These are a lot of success stories. These are success stories because what they have done is they have understood their design philosophy. They have understood who they are making clothes for. खाड़ी में आपको वो फ्रेंच जैकेट नहीं मिलेगा, ना आपको इमेज पे मिलेगा. उनको पता है कि जो एक आम पाकिस्तानी औरत, और वो पाकिस्तानी औरत सिर्फ शहर में नहीं रहती है. शी इज़ नॉट somebody who lives in Defence or lives in Karachi or lives in Nazimabad or lives in Gulshan. These are not those people. Pakistan is represented by somebody who lives in Gujranwala, in Sialkot, in Sargodha, in Chichawatni. These are the women who actually all buy clothes, which is why lawn is the most successful thing in Pakistan. Even in India, lawn इस तरह नहीं बिकता जैसे यहाँ बिकता है. क्योंकि क्या है basic formula? Everybody wants to wear something very pretty, very nicely done, अच्छे रंग हो, simple सा कट हो, और that's it. हम उस बात से भी पाबंद है कि हमारे कल्चरल क्या है. जब आप रूरल सेक्टर में जाके देखते हैं, everybody covers their head, so the dupatta has become a must. You have to have a dupatta. कराची शहर में नहीं है, वो और बात है, लेकिन कराची doesn't represent Pakistan, neither is Lahore, nor is Islamabad. तो जब आप इसकी सेमेंटिक्स देखते हैं और जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तान की असलियत है क्या,
और इसको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस नतीजे पे पहुँचे, सिंपल शेप, बिकॉज यहाँ पे कपड़े बनिस्बतन वेस्ट के, द वेस्ट इज़ ऑल अबाउट शोइंग योर बॉडी, विच इज़ वाई पीपल वेयर वेरी लिटिल, क्योंकि वहाँ पे फिटनेस है, वहाँ पे डाइट है, वहाँ पे ऑल्सो बॉडी स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. द यूरोपियन वुमन हैज़ अ शॉर्ट टॉर्सो एंड वेरी लॉन्ग लेग्स. एशियन वुमन हैज़ अ शॉर्ट लेग्स एंड अ लॉन्गर टॉर्सो. तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपके स्केल में और डिज़ाइन में फ़र्क आता है. और हमेशा एक बड़ी मशहूर बात है, लोग कहते हैं द ओनली थिंग दैट चेंजेस इन फैशन आर हेम लाइन्स. आजकल 48 इन, उससे पहले 40 इन था. तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू फैशन, एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या बनाते हैं. तो उसकी वजह से आपको फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जी वी हैव टू डू वेरी प्रिटी क्लोथ्स. मोस्ट वुमेन वांट टू वेयर समथिंग वेरी प्रिटी एंड आई थिंक इमेज इज अ क्लासिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट. खाड़ी का भी वही है. बहुत सारे जो है, आई मीन लाइमलाइट्स ह्यूज सक्सेस इज बिकॉज दे डू वेरी प्रिटी प्रिंट्स वेरी चीप. सो प्राइस पॉइंट, बहुत सारे लोग प्राइस पॉइंट पे आगे निकल गए. एंड प्राइस पॉइंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ गारमेंट. आप एक चीज़ बनाते हैं और वो 10 करोड़ रुपए की, तो वो तो कोई भी बहुत हसीन होगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट एज यंग स्टूडेंट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वर नेवर टोल्ड दिस, हमें तो कभी किसी ने बताया नहीं ये बातें. तो यू हैव टू बी टोल्ड कि यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ फर्स्ट, कि जी आपने किसके लिए करना है. बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी, हमने जाके जॉब करना है. आप कहाँ जॉब करेंगे? गुल अहमद पे करेंगे, यू गो टू ऑल द मल्टीनेशनल जो या हाई स्ट्रीट ब्रांड्स हैं, उन्हीं के पास आप लोग जाएंगे. बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है. कुछ लोग कहते हैं जी हमने ब्राइडल करना है, तो ब्राइडल कैटेगरी में आप चले जाते हैं. उसमें फिर आपको बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमने आपके साथ जॉब करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है? जी हमारा इंटरेस्ट ब्राइडल है. उनको हम कहते हैं आपको पता है फरीशा क्या है? कहते हैं नहीं. आपको पता है फतीला क्या है? कहते हैं नहीं. जो ज़बान होती है एम्ब्रॉयडरी की, आप लोग वो भी नहीं जानते. तो ये डिज़ाइन फिलॉसफी का एक बहुत अहम हिस्सा है और वो शुरू होता है अपने आप को जानने से. आप करना क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आपने एक जॉब करनी है, then this conversation will not affect any of you. Then it's pointless. If you want to go and just be a pencil pusher at something, जब आप बैठ के वहाँ पे आप प्रिंट्स बना रहे हैं और आप उस कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन if you want to be an entrepreneur, you want to launch your own brand, you want to have your own sense of design, you want to be able to create a label, then this conversation will affect you. तो ये बातें सोचने वाली बातें हैं और ये आपकी बुनियाद है. कोई भी इमारत बगैर किसी बुनियाद के नहीं हो सकती. This is why 30 years later we are still relevant. Lot of brands have been waylaid on the side. Lot of brands have not grown and have not expanded. There are wonderful, wonderful designers like Bantu Kazmi who is not interested in print. मैं बंटू आपा के साथ जब बैठ के बात करता हूँ, कहते बेटा मुझसे तो नहीं था, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं, मैं अगर करूँगी तो मुझसे नहीं होगा. So the important thing is she knows herself. उसको पता है अपनी लिमिटेशन क्या है. The same is true of somebody like Faiza Sami. वो कहती मैं तो I'm a traditionalist, I'm a revivalist. मैं तो पुराने मुगल किताबें देख के उसमें से मैं तो देख रही हूँ कि जी वसली क्या है और मैं देख रही हूँ कि दो क्या है और मैं वो रेप्लिकेट करती हूँ. She knows herself. There are a lot of people who say जी हमसे तो ब्राइडल होता ही नहीं. Mahin Khan is a classic example. Mahin is a very fabulous designer who does these simple cuts and beautiful fabrics. She cannot approach bridal the way people want bridal today. So ये सारी बातें आप लोग को, ये सवाल आप लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने करना क्या है और किस रुख जाना है. It's okay to be confused. When you are in your early, years at college, it's fine. But this has to resonate with you at some level. You have to be able to think about this at some time in your career. The sooner you approach it, the more time you will save. अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है. You don't want to go through the whole process yourself, and when you graduated and worked for 2 years, then you realize that this is not my area of interest. You wasted all that time.